kids, very good morning to all. Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of Laswagya Preschool. Today's date is 26th November 2020 and day is Thursday. Hello kids, now it's time for English recitation. Kids, today we will recite an English rhyme. 1, 2, buckle my shoes. Let's start. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up sticks. 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hen. Kids, repeat it again. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up sticks. 7, 8, lay them straight. 9, 10, a big fat hen. Kids, learn it well. Thank you. Hello kids, welcome back to your next class, that is English Oral. So take out your English book, English with Phonics, and open the page number 38 and 39. Kids, in this page we will learn about I sound word like I be ib, id id, ig ig, and I am im. Okay, let's start. I be ib, b I b bib, b ib bib, f ib fib, na ib nib, ra ib rib. Okay, let's repeat it again. B I b bib, f I b fib, n I b nib, r I b rib. Okay, and next is ig ig, b ig big, d ig dig, g jig, p ig pig, v ig wig, and f ig fig. Big, dig dig, gig jig, pig pig, vig wig, fig fig. And id sound word id id, b id bid, d id did, h id hid, k id kid, la id lid, ra ib rib, I am im, da im dim, ha im him, ra im rim. B I d bid, d I d did, h I d hid, k I d kid, l I d rid, lid, r I d rid, d I am dim, h I am him, r I am rim. Okay, kids, like this you have to read this page. Okay, thank you. Hello kids, welcome back to your next class, that is English written. So take out your English notebook where I have done the setting of 26th November 2020 and day is Thursday. Kids, today we will do two exercise related I sound word. बच्चों, आज हम लोग I से related two exercise करेंगे. Okay, number 1 is matching and number 2 is fill the correct letter. Okay, so let's start. चलिए हम शुरू करते हैं. Matching. What is this? This is pin. ये क्या है? Pin. So we will match the word nib. Sorry, this is nib. तो हम लोग इसको nib से मैच करेंगे. ना I B nib, N I B nib. Like this. You have to match nib to word NIP nib. Next is lip. NIP lip. What is the spelling of lip?
LIP lip. So where is lip? This is LIP lip. Okay. So match the word with the figure of lip like this. Okay. Next figure is BIP bib. Bib. Okay. This is bib. So we will match the word BIP bib. This is BIP bib. Like this, you have to match BIP bib. And next figure is zip. Okay, ZIP zip. Where is right ZIP zip? Yes, this is ZIP zip. ये zip है. So like this, you have to match figure zip to the word zip. Okay, and last figure is tin. This is tin. So we will match the figure with the word tin. TIN tin. Okay. TIN tin. Like this you have to do this exercise. Okay. And next exercise is fill the correct letter. हम लोगों को ये word दिए हैं, यहाँ पे letter miss है. So हम लोग यहाँ पे I sound fill करके I letter को fill करके ये word को complete करेंगे. Okay. NIB nib. Okay. And next is TIN tin. TIN tin. Okay. Next is BIN bin. हम लोग यहाँ पे I fill कर देंगे तो word हमारा complete होगा BIN bin. And next is LIP. यहाँ पे I fill कर देने से word हमारा बनेगा LIP lip. ओके. नेक्स्ट वर्ड है आपका B-B. तो यहाँ पर I फिल कर देंगे तो आपका वर्ड बनेगा BIB bin. ओके. एंड लास्ट वर्ड है FIG. यहाँ पर I फिल किया तो हमारा वर्ड बना FIG fig. ओके. Kids, like this you have to complete these two exercises. Neat and clean. Thank you. हेलो किड्स, इट्स टाइम फॉर हिंदी रेसिटेशन. आज हम लोग हिंदी रेसिटेशन में 3 तोते वाली राइम करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. 3 तोते थे, वो तीनों रोते थे, एक पटाखा फूटा, जैसे कोई बर्तन टूटा. उड़ गए तीनों तोते, पहला तोता फुर, दूसरा तोता फुर फुर फुर, तीसरा तोता फुर फुर फुर. किड्स, रिपीट इट अगेन. 3 तोते थे, वो तीनों रोते थे, एक पटाखा फूटा, जैसे कोई बर्तन टूटा. उड़ गए तीनों तोते, पहला तोता फुर, दूसरा तोता फुर फुर, तीसरा तोता फुर फुर फुर. किड्स, learn it well. Thank you. Hello kids, welcome back to your next class, that is Hindi oral. So take out your Hindi book Shabd Gyan and open the page number 32. बच्चों, अभी तक हम लोगों ने स्वर, व्यंजन, अक्षर पढ़े थे. अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं. तो चलिए आज हम लोग 3 अक्षर के शब्दों से वाक्य को पढ़ना सीखते हैं. चलिए स्टार्ट. मटर मटर चक, चाखा चक. एंडिंग लाइन या पूर्ण विराम. हम लोगों को इसमें 1 सेकेंड के लिए स्टॉप होना है, रुकना है. नेक्स्ट, कलश भर भर, पूर्ण विराम. इट मीन्स हमको यहाँ पर रुक जाना है. कलश भर. रमन रमन, ठहर ठहर, पूर्ण विराम. ये बोलना नहीं है, ये हम लोगों को अगर पूर्ण विराम यहाँ पे ये स्टैंडिंग लाइन होती है तो इसका मतलब होता है कि हमको अब रुकना है. ये हमारा वाक्य ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है. उधर चला चल, उधर चल. नमन करा कर, नमन कर. नरम बन,
नरम बाना बन, अटक मत, बहन चला चल, बहन चल, झगड़ झगड़, माता मत, सबक पढ़ पढ़, सबक पढ़, शहद शहद, चखा चख, शहद चख, अकड़ अकड़, माता मत, अकड़ मत। तो बच्चों हम लोगों को इसी तरीके से वाक्य को पढ़ना होगा। थैंक यू। Hello kids, welcome back to your next class, that is Hindi written. So take out your Hindi notebook where I have done the setting of 26 November 2020 and day is Thursday. बच्चों आज हम लोग अपनी हिंदी की क्लास में 2 एक्सरसाइज करेंगे। ओके, पहला है पहले बीच और बाद के अक्षर लिखो, या आप पहले भी कर चुके हैं। ओके, सो आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए स्वर और व्यंजनों को बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कौन सा अक्षर है? चा। तो चा के बाद क्या आता है? यहाँ पर स्पेस है, डैश है। ओके, हमको चा के बाद वाला अक्षर लिखना है। चा के बाद क्या आता है? छा। छा से छाता। तो हम लोग यहाँ पर छा से छाता लिख देंगे। ओके, अब पहले डैश लिखा हुआ है, फिर बाद में अक्षर दिया हुआ है फा। तो इसका इट मीन्स कि फा से पहले क्या आता है? कौन सा अक्षर आता है? पा। पा से पतंग, फा से फल। ओके, नेक्स्ट है ता डैश दा। तो हम लोगों को बीच में अक्षर फिल करना होगा। ता और दा के बीच में कौन सा अक्षर आता है? ता से तरबूज, था से थर्मस। तो हम लोग यहाँ पर था से थर्मस लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर अक्षर दिया हुआ है या, और इसके आगे डैश लिखा हुआ है। तो हम लोगों को या के बाद वाला अक्षर लिखना है। तो या से यज्ञ के बाद क्या आता है? या से यज्ञ, रा से रस्सी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? रा से रस्सी, रा से रथ भी होता है। ओके, एंड नेक्स्ट है श से षटकोण। यहाँ पर डैश है, शाह के पहले कोई अक्षर नहीं लिखा हुआ है। तो हमें शाह से षटकोण के पहले कौन सा अक्षर लिखना होगा? शाह। शाह से शलजम। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे शाह से शलजम, फिर शाह से षटकोण। ओके, अब नेक्स्ट है का से कबूतर, डैश एंड गा से गमला। तो का से कबूतर के बीच के बाद क्या लिखेंगे? खा से खरगोश। ओके, हम लोग इस तरीके से खा से खरगोश लिख देंगे। ओके, तो आप लोगों ने इस तरीके से पहले बीच और बाद के अक्षर वाली एक्सरसाइज करी। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा? सही अक्षर पर गोला लगाइए। इट मीन्स कि आपको ये चित्र दिया होगा और चित्र को देखते हुए जो इससे रिलेटेड सही अक्षर है उस पर सर्कल या गोला कर देंगे। तो ये है चा, चा से चम्मच। तो ये क्या है? छा, छा से छाता। ये है चा, चा से चम्मच। तो आपको चा से चम्मच पे गोला लगा देना होगा, सर्कल कर देंगे हम लोग इस तरीके से। ओके, ये है माँ, माँ से मछली। तो इन दोनों अक्षर को छोड़ देंगे और सही अक्षर पर गोला लग जाएगा। एंड नेक्स्ट है पतंग, पा से पतंग। यहाँ पर ये भा से भालू, माँ से मछली और लास्ट में है प, पा से पतंग। तो सही अक्षर है पा से पतंग। तो सर्कल हम लोग इस तरीके से सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट अक्षर है, ये है चित्र टमाटर। तो टा से टमाटर, ये है डा से डलिया, ये है टा से टमाटर और ये है ठा से ठठेरा। तो सही अक्षर है टा। तो हम लोगों ने इस तरीके से टा पे ये सर्कल कर दिया, गोला लगा दिया। ओके, एंड नेक्स्ट है, ये है ला से लट्टू। तो ये है ला, ला से लट्टू। तो सही अक्षर पर हम लोग इस तरीके से गोला कर देंगे। ये है शा से शलजम, ये है शा से षटकोण। ये सही अक्षर नहीं है रिलेटेड टू दिस चित्र। ओके, एंड नेक्स्ट है जा से जहाज।
तो ये है झा से झंडा, जा से जहाज और का से कबूतर। तो सही अक्षर है जा से जहाज। और इस तरीके से हम लोगों ने सही अक्षर पर गोला कर दिया। किड्स, आपको इसी तरीके से अपनी नोटबुक में इस एक्सरसाइज को बहुत ही नीट एंड क्लीन करना होगा। ओके, थैंक यू। Hello kids, welcome back to your next class, that is Maths Written. So take out your Maths notebook where I have done the setting of 26 November 2020 and day is Thursday. Kids, today we will do new work, that is skip counting of 10s. हम लोगों को 10 नंबर की skip counting करनी है, okay? So first of all we will learn the skip counting of 10s. हम लोगों को इसको learn करना होगा, okay? चलिए, स्किप काउंटिंग में 10 नंबर होते हैं, देन 9 नंबर को स्किप करते हुए हम लोग नेक्स्ट 10 नंबर पे जाएंगे। ओके, इसके लिए हम लोगों को काउंटिंग 1 से 100 तक अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ कैन राइट स्किप काउंटिंग ऑफ 10s? चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर 10, देन वी हैव टू स्किप नंबर 9। हम लोगों को 1 से ले 9 नंबर को जंप करके नेक्स्ट 10 नंबर पे जाना होगा। तो 10 के बाद हम लोगों को 9 नंबर स्किप करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा? 20। सो हियर वी विल राइट द नंबर 20 एंड देन अगेन वी विल स्किप द 9 नंबर एंड देन राइट द 10 नंबर। हम लोग फिर 10 नंबर पे पहुंचेंगे। तो 20 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 30। 9 नंबर को जंप करते हुए हम लोग 10 नंबर पे पहुंचे तो हम लोगों को नंबर मिला 30। ओके, एंड देन वी विल राइट द नंबर 40। 30 के बाद 9 नंबर को जंप करते हुए हम लोग 40 पे पहुंचेंगे, स्किप करके 40 पे आएंगे। सो हियर वी विल राइट द नंबर 40 and then 40 after, then we will skip the number 9 and then reach the 10th number. हम लोग 10वें नंबर में पहुंचेंगे। So here we will write the number 50। यहाँ पे 99 नंबर को skip किया जा रहा है and 10 जो 10वां नंबर होगा उसको write करना होगा। Then again we will write the number 60 because skip the 9 number. Okay, 60 after 70, then 80, 90, at last here we will write the number 100, 100. Okay, इनमें हम लोग को 99 नंबर का डिफरेंस लेना है और 10 नंबर पे पहुंचना है। ओके, अब हम लोग इसको लर्न करेंगे। हाउ कैन लर्न दी स्किप काउंटिंग ऑफ 10s? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके किड्स, ये आपको काउंटिंग 10 के टेबल में मिलती है। ओके, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay, kids, you have to learn it and write it like this. Thank you. Hello kids, welcome back to your last class, that is GK Oral. Kids, today you have to learn some questions and their answer from the syllabus. हम लोगों को ये कुछ questions हैं, उनको हमको अपनी syllabus से learn करना होगा. Okay, let's start. Question number 1 is birds that give us egg. वो कौन सी birds है जो हमको egg देती है? Okay, birds that gives us egg, that is hen. Hen gives us egg. Okay, question number 2 is cow and buffalo gives us milk. cow और buffalo क्या देती हैं? दूध, milk देती हैं. Okay, cow and buffalo gives us milk. Question number 3 is sheep gives us wool. sheep means भेड़. भेड़ हमें क्या देती है? wool, sweat, ऊन से क्या बनता है? स्वेटर. Okay, sheep gives us wool.
Question number 4 is camel and donkey carry load. Camel and donkey किस हेल्प में होते हैं? Camel and ऊंट, camel means ऊंट and donkey means गधा. ये हमारी क्या हेल्प करते हैं? जो भारी बोझ होता है वो उसको ढोते हैं. ओके, camel and donkey carry loads. Okay. Question number 6 is bird that live in water. वो बर्ड जो पानी में रहती है, that is duck. Duck means बतख. बतख कहाँ रहती है? Water. Live in water. Next question is dancing bird. कौन सी बर्ड, कौन सी चिड़िया डांस करती है? Dancing bird, that is peacock. This is peacock. ये कौन है? Peacock. Okay. At last question number 8 is talking bird. Talking, कौन सी बर्ड टॉकिंग करती है, बात करती है? Talking bird is parrot. Okay, kids, learn it well. Repeat it again. Okay, horse that gives us egg, hen, cow and buffalo gives us milk, sheep gives us wool, camel and donkey carry load, dog guards our home, birds that live in water, duck, dancing bird, peacock, talking bird is parrot. Kids, learn it. You have to like this. Thank you.